بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اسرائیل نے کہا پوری طاقت سے حملے جاری ہیں، سیز فائر کی تجویز نہیں، حماس کے ملٹری چیف ٹارگٹ ہیں۔ جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 218 ہو گئی، 50 سے زیادہ سکولز کو نقصان۔ غزہ سے حملے جاری، ساؤتھ اسرائیل میں ملٹری بیس کو نشانہ بنایا گیا، کئی شہروں میں سائرن کی آوازیں۔ مغربی کنارے اور قدس میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں میں جھڑپیں، 4 جاں بحق۔ امریکہ نے ایک بار پھر سیکیورٹی کونسل میں بیان رکوا دیا، فرانس نے کہا فوری سیز فائر نہیں ہوا تو لڑائی پھیل جائے گی۔ کئی ملکوں میں مظاہرے، فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، چلی کے سینٹیاگو میں 1000 لوگ جمع۔ انڈیا میں 4500 سے زیادہ نئی کووڈ موتیں، KCR نے پہلی بار کیا گاندھی ہاسپٹل کا دورہ، مریضوں سے بات چیت۔ بارہ بنکی میں مسجد گرائے جانے پر احتجاج، سنی سینٹرل وقف بورڈ عدالت جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات غزہ کی۔ اسرائیل نے غزہ پر زبردست بمباری جاری رکھی اور یہ بات صاف کی کہ فی الحال جنگ بندی کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ دوسری طرف حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کی طرف سے بھی اسرائیلی شہروں پر راکٹس داغے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل کی تازہ بمباری میں کم سے کم 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جن میں ایک جرنلسٹ شامل ہے۔ ساؤتھ اسرائیل کے کئی شہروں میں فلسطینی گروپوں نے راکٹ داغے۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے اور قدس میں فلسطینیوں کے احتجاج کے دوران جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے 4 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور درجنوں دوسرے زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع بینی گینٹس نے کہا ہے کہ آپریشن پوری طاقت سے جاری ہے، سیز فائر کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ دوسری طرف حماس کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے سنجیدگی سے کوششیں ہو رہی ہیں، لڑائی کے 10 دن پورے ہو گئے ہیں۔ BBC نے بتایا کہ تازہ حملوں میں 2 حماس ملیٹنٹس ہلاک ہوئے۔
10 मई को बमबारी शुरू होने के बाद से गाजा में जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 218 हो गई है। इनमें 63 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1500 फलस्तीनी जख्मी हुए। दूसरी तरफ रॉकेट हमलों में इसराइल में 12 लोग हलाक हुए और 300 जख्मी हुए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने बताया कि मंगल की रात 25 मिनट में 122 हमले किए गए। ताज़ा हमलों में मारे गए जर्नलिस्ट की पहचान यूसुफ अबू हुसैन की हैसियत से की गई है, जो एक रेडियो चैनल के लिए काम करते थे। गाजा के शेख रिजवान इलाके में एक हवाई हमले में 2 जाँ बहक हुए। गाजा में 50 स्कूल्स को पिछले एक हफ्ते में नुकसान पहुंचा है। सेव द चिल्ड्रन तंजीम ने बताया कि इससे 42,000 से ज्यादा बच्चे मुतासर होंगे। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुताल्लिक इदारे ने फौरी इंसानी बुनियादों पर मुतासरा लोगों तक रसाई देने का मुतालबा किया। साउथ इसराइल में किए गए एक हमले में थाईलैंड के 2 वर्कर्स एक दिन पहले हलाक हुए थे। इस हमले में 7 दूसरे लोग जख्मी भी हुए। इसराइली फौज ने बताया कि गाजा से रात भर 50 रॉकेट्स दागे गए। अशदूद, तेल अवीव और दूसरे शहरों में सायरन बजते रहे। ताज़ा रॉकेट हमलों में नुकसानात के बारे में फौरी कोई खबर नहीं मिली। इसराइल ने रात में 25 मिनट में 52 हमले करते हुए दावा किया कि हमास की सुरंगों को निशाना बनाया गया है। हमास ने कहा कि उसने इसराइली एयर बेसिस को निशाना बनाया। गाजा सरहद के करीब इसराइल के एक टाउन में सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। حسبي الله وانت نعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ابويا ابويا يما ما يدفنوش. اعمامي كلهم مش هيدفنوه مش هيدفنوه اعمامي مش هيدفنوه كله يودعوا. इसराइल ने हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दीफ को हलाक करने की नाकाम कोशिश की। अब तक 10 मई के बाद से इस तरह की 2 कोशिशें की गई हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि हमास के मिलिट्री चीफ उसके अहम टारगेट हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि गाजा में तकरीबन 450 इमारतों को तबाह कर दिया गया या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। 48,000 से ज्यादा लोग यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूल्स में पनाह लिए हुए हैं। इसराइल ने कहा है कि गाजा से 4,000 के करीब रॉकेट्स फायर किए गए। मगरबी किनारे और दूसरे मकामात पर फ़लस्तीनियों के मुजाहरे जारी हैं। रामल्ला, हिब्रोन और दूसरे मकामात पर बड़े जुलूस निकाले गए। तमाम फ़लस्तीनी ग्रुप्स इस तरह के मुजाहरों में हिस्सा ले रहे हैं और फ़लस्तीनी इत्तेहाद का सबूत दे रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी फौज गाजा में इंतहा पसंदों के ठिकानों को तबाह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वो सिविलियन हलाकतों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक मारे गए फ़लस्तीनियों में ज़्यादातर सिविलियंस हैं और इनमें भी आधे से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो अपनी हिफाजत में कार्रवाई कर रहे हैं। सफ़ीरों से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उनकी फ़ौज सिविलियन हलाकतों को टालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा से हमास और दूसरे ग्रुप्स ने 4,000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गाबी अश्केनाज़ी ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क इस तरह के खतरनाक हालात में नहीं रह सकता। उन्होंने दावा किया कि हमास ने फोर्सेस को उस वक्त भी निशाना बनाया जब वो इंसानी मदद की काम कर रही थी।
खबर है कि गाजा से छोड़े गए रॉकेटों में साउथ इसराइल के एक फौजी अड्डे में नुकसान पहुंचा। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई में जाँ बहक नौजवानों की तदफीन की गई। इस मौके पर जज्बाती नज़ारे देखे गए। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल इस बात का जायजा ले रहा है कि क्या गाजा के फ़लस्तीनी ग्रुप के साथ लड़ाई रोकने के लिए हालात सही हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो कई दिनों तक हमलों के लिए तैयार है। इसराइली फ़ौज के एक ओहदेदार के हवाले से ये बात कही गई। जंगबंदी की कोशिशों के सिलसिले में इजिप्ट के एक डेलीगेशन और अमरीका के नुमाइंदे ने खित्ते का दौरा किया है। इसराइल में मुजाहरों और गड़बड़ के सिलसिले में कम से कम 58 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद एक बयान जारी किया गया। इन तीनों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि हमले रोके जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले पर गौर किया जाए। इस दौरान हंगरी के सिवा यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों ने सीज़फायर का मुतालबा किया है। हंगरी यूरोप में इसराइल का सबसे करीबी इत्तेहादी है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने वार्निंग दी है कि अगर ये लड़ाई फौरी नहीं रोकी गई तो और फैल सकती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसराइल गाजा में ज़मीनी कार्रवाई नहीं करेगा। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हीको मास ने अमन कोशिशों की तायद की और कहा कि हम इन कोशिशों में मदद के लिए तैयार हैं। इराक़ के एक सीनियर ओहदेदार ने जर्मन सफ़ीर से मुलाकात की और कहा कि यूरोपीय यूनियन गाजा में इसराइल के हमलों के ताल्लुक़ से सख्त रुख इख्तियार करे। अमेरिका ने एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जंग खत्म कराने के लिए एक बयान जारी करने से रोक दिया है और सफारतकारों से कहा है कि इस तरह के बयानात से तनाव कम करने में मदद नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ फ्रांस ने कहा है कि वो एक नई जंगबंदी करारदाद के सिलसिले में इजिप्ट और जॉर्डन के साथ मिलकर काम कर रहा है। चाइना ने कहा है कि वो फ्रांस की तजवीज़ की तायद करता है। इराक़ के शिया आलिम मुक़्तदा अस-सदर ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत से सहीयूनियत के ख़ात्मे की शुरुआत होगी और ये ख़ित्ते में इस्तेहकाम का नुक़्ता आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि कई लोगों का कहना था कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ख़त्म हो गई है। यही वजह है कि इसराइल ने बैतुल मक़दिस को बेचना शुरू कर दिया और अरब मुल्कों ने सहीयूनी दुश्मन के साथ ताल्लुक़ात कायम किए। लेकिन इस मरतबा फ़लस्तीनी मुज़ाहमत सिर्फ पत्थरों तक या सिर्फ गाज़ा तक महदूद नहीं है, बल्कि बैतुल मक़दिस, रमला और कब्ज़ा किए गए इलाक़ों में देखी गई है। यह इस बात का इशारा है कि फ़लस्तीन कॉज की मदद बढ़ रही है। न सिर्फ अरबों में बल्कि दूर दराज के मकामात तक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। इराक़ की हिज़्बुल्लाह ने कहा कि वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। हिज़्बुल्लाह तहरीक के लीडर ने हमास के इस्माइल हानिया और दूसरे मुज़ाहमती ग्रुप्स के लीडर्स के साथ बातचीत की। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। मेवलूद कावुसोगलू ने कहा कि अन्कारा कभी भी फ़लस्तीनी कॉज की तायद नहीं छोड़ेगा। तुर्की ने अमेरिका के इस दावे को रद्द कर दिया है कि सदर तैयब एर्दोगान ने गाज़ा पर इसराइली हमलों की मजम्मत करते हुए यहूदियों के खिलाफ तबसरा किया है। एर्दोगान के तर्जुमान ने कहा कि इस तरह की तनकीद सही अप्रोच नहीं है, ये सदर के बारे में झूठ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इसराइल ने कहा पूरी ताकत से हमले जारी हैं, सीज फायर की तजवीज नहीं, हमास के मिलिट्री चीफ टारगेट हैं। जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 218 हो गई, 50 से ज्यादा स्कूल्स को नुकसान। गाजा से हमले जारी, साउथ इसराइल में मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, कई शहरों में सायरन की आवाजें। मगरबी किनारे और कुद्स में इस्राएली फोर्सेस और फलस्तीनियों में झड़पें, 4 जाँ बहक। अमेरिका ने एक बार फिर सिक्योरिटी काउंसिल में बयान रुकवा दिया। फ्रांस ने कहा फौरी सीज फायर नहीं हुआ तो लड़ाई फैल जाएगी।
कई मुल्कों में मुजाहरे, फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। चिली के सैंटियागो में 1000 लोग जमा। इंडिया में 4500 से ज्यादा नई कोविड मौतें। केसीआर ने पहली बार किया गांधी हॉस्पिटल का दौरा, मरीजों से बातचीत। बाराबंकी में मस्जिद गिराए जाने पर एहतजाज, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत जाएगा। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। दुनिया के कई मुल्कों में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए मुजाहरे किए जा रहे हैं और जुलूस निकाले जा रहे हैं। लेबनान में इसराइली सरहद के करीब कई लोग जमा हुए। उन्होंने सरहद पर इसराइली फोर्सेस पर पथराव की भी कोशिश की। बेरूत में भी मुजाहरा हुआ। बगदाद में भी फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाज किया गया। न्यूयॉर्क से भी मुजाहरे की खबरें मिली हैं। इसके अलावा अमरीका के दूसरे शहरों में भी मुजाहरे हुए। कुवैत ने गजा की फौरी इंसानी मदद का ऐलान किया। चिली के शहर सैंटियागो में एक जबरदस्त मुजाहरा किया गया और इसराइल की मजम्मत की गई। एक फुटबॉल क्लब के पास 1000 से ज्यादा लोग जमा हुए। सैंटियागो में फलस्तीनियों की बड़ी तादाद रहती है। अमेरिका के बॉस्टन और लॉस एंजलिस में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। इजिप्ट ने गाजा की दोबारा तामीर के लिए $500 मिलियन मदद का ऐलान किया है। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने फेसबुक पर लिखा कि इजिप्ट दोबारा तामीर की कोशिशों में मदद करेगा। इजिप्ट गाजा में सीज फायर की कोशिशों में मसरूफ है। पाकिस्तान ने गाजा में इसराइली हमलों की मजम्मत की है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्की में फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालिकी से मुलाकात की। कुरैशी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां वो UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और मुतालबा करेंगे कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमले फौरी बंद करे। बात कोविड की। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 4519 कोविड मौतें हुई। ये वबा शुरू होने के बाद से एक दिन की सबसे ज्यादा मौतें हैं। इसी मुद्दत के दौरान 2,67,334 नए केस पाए गए। मुसलसल तीसरे दिन 3 लाख से कम केस रिकॉर्ड किए गए। वजारत सेहत ने बताया कि रिकवरी रेट बेहतर होकर 86% से ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटों में 3,90,000 के करीब लोग रिकवर हुए। इस दौरान वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड टेस्टिंग बढ़ाकर रोजाना 25 लाख की जाएगी। सिंगापुर ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर एतराज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में एक खतरनाक वायरस की शक्ल पाई जाती है जो बच्चों को मुतासिर कर रही है। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा कि केजरीवाल पूरे इंडिया की तरफ से नहीं बोल रहे थे। सिंगापुर ने इंडियन हाई कमिश्नर पी कुमारन से सख्त एहतजाज किया। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हाई कमिश्नर ने सिंगापुर हुकूमत को बताया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कोविड-19 की शक्लों के बारे में तबसरा करने के लिए मुनासिब शख्स नहीं है। सिंगापुर की वजारत खारजा ने कहा कि सिंगापुर की कोई शक्ल नहीं है। जिस नई शक्ल की बात की गई है वो सबसे पहले इंडिया में ही पाई गई थी। मरकजी हुकूमत ने कहा कि रिकवरी के बाद 3 महीनों तक कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं लिया जा सकता। हुकूमत ने कहा कि पहले डोज के बाद अगर कोई वायरस से मुतासर होता है तो दूसरे डोज के लिए 3 महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कोविड मरीजों में हौसला पैदा करने के मकसद से ये दौरा किया। अपोजिशन और सिविल सोसाइटी की तरफ से काफी अरसे से मुतालबा किया जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर मैदान में आए और कोविड की सूरत हाल का खुद जायजा लें। केसीआर ने डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों से बातचीत की। उन्होंने मरीजों और डॉक्टर्स के साथ तकरीबन 1 घंटा गुजारा। इस दौरे के दौरान केसीआर इमरजेंसी वार्ड, ICU और आउट पेशेंट
बांट गए। उन्होंने परेशान हाल मरीजों और उनके रिश्तेदारों को दिलासा दिया। चीफ मिनिस्टर ने गांधी हॉस्पिटल में दी जाने वाली सर्विसेज पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे स्टाफ मेंबर्स की तारीफ की। इस दौरे के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा गया। बाद में चीफ मिनिस्टर ने आला ओहदेदारों के साथ प्रगति भवन में कोविड सूरत हाल का जायजा लिया। एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ाने का फैसला किया था। सऊदी अरब अफ्रीका के मुल्कों को कोरोना वायरस से निपटने में मदद के लिए $1 बिलियन देगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह ऐलान किया। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए इस प्रोजेक्ट पर अमल किया जाएगा। यूएई में 1348 नए केस पाए गए और 2 नई मौतें हुई। रशिया में 7920 केस पाए गए और 390 मौतें हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात और मरकजी इलाके दीव में तूफान से मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे किया। तूफान ताकते से इन इलाकों में जबरदस्त तबाही आई है। चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी भी मोदी के साथ सर्वे में शामिल थे। इस तूफान की वजह से कम 13 लोग हलाक हुए और 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा और इस दौरान ओएनजीसी के लापता कारकुनों की तलाश जोरों शोर से जारी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ओहदेदारों की तरफ से एक पुरानी मस्जिद को गिराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसे गैर कानूनी कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। बोर्ड ने कहा कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएगा और मस्जिद को बहाल करते हुए आला सतह की तहकीकात और कसूरवार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेगा। जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये कार्रवाई कानूनी बुनियादों पर की गई है। ये 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद थी जिसका नाम गरीब नवाज मस्जिद था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई की मैं मजम्मत करता हूं। नाजायज कब्जे को रोकने के नाम पर यह कार्रवाई की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल को एक हुक्म जारी करते हुए 31 मई तक मस्जिद के ताल्लुक से किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि मस्जिद कमेटी को अपनी बात रखने के लिए मुनासिब वक्त दिया गया। इस वाक़े के बाद मकामी मुसलमानों में काफ़ी डर पाया जाता है। कई मुसलमानों ने इलाके को छोड़ भी दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस कार्रवाई की मजम्मत की है। ओहदेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मस्जिद के अतराफ की गई तामीरात से सड़क पर मसाइल पेश आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों के खिलाफ ये की गई एक और सख्त कार्रवाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कार्रवाई की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। जिला मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह ने मस्जिद की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को एक नोटिस जारी की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कोविड-19 के मौजूदा हालात में फिलहाल कोई कार्रवाई ना की जाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइल ने कहा पूरी ताकत से हमले जारी हैं, सीज फायर की तजवीज नहीं, हमास के मिलिट्री चीफ टारगेट हैं। जांबहक फलस्तीनियों की तादाद 218 हो गई, 50 से ज्यादा स्कूल्स को नुकसान।
غزہ سے حملے جاری، ساؤتھ اسرائیل میں ملٹری بیس کو نشانہ بنایا گیا، کئی شہروں میں سائرن کی آوازیں۔ مغربی کنارے اور قدس میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں میں جھڑپیں، 4 جاں بحق۔ امریکہ نے ایک بار پھر سیکیورٹی کونسل میں بیان رکوا دیا، فرانس نے کہا فوری سیز فائر نہیں ہوا تو لڑائی پھیل جائے گی۔ کئی ملکوں میں مظاہرے، فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، چلی کے سینٹیاگو میں 1000 لوگ جمع۔ انڈیا میں 4500 سے زیادہ نئی کووڈ موتیں، کے سی آر نے پہلی بار کیا گاندھی ہاسپٹل کا دورہ، مریضوں سے بات چیت۔ بارہ بنکی میں مسجد گرائے جانے پر احتجاج، سنی سینٹرل وقف بورڈ عدالت جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔